रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर रहमतों बरकतों के साथ साया फगन है। पुलिकेशी नगर असम्बली हल्के के एमएलए AC श्रीनिवासा ने अपने हल्के के मुसलमानों को सुकून और अमन के साथ रमज़ान का महीना गुजारने के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम करने की गर्ज से आज अपने दफ्तर यानी एमएलए ऑफिस में तमाम डिपार्टमेंट्स का एक मशावराती इजलास तलब किया। इस इजलास में BWSSB, BBMP, बेस्कॉम, गार्बेज के अलावा पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर एंड ट्रैफिक के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए AC श्रीनिवासा ने सीनियर कांग्रेस लीडरों की मौजूदगी में तमाम आला ओहदेदारों को हिदायत दी कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है कि इस महीने में मुसलमानों की इबादत में किसी भी तरह का खलल नहीं होना चाहिए, इसलिए पीने के पानी की सराबराही और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा गार्बेज डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो पाकी सफाई का खास ख्याल रखें और उन्होंने सीनियर लीडर्स से खिताब करते हुए कहा कि तुम आप लीडरों की जिम्मेदारी है कि आवाम को इस बात का मैसेज दें कि वो भी इन ओहदेदारों का ताउन करें और अपने इलाकों को पाक साफ रखें। आज के इस इजलास में एमएलए AC श्रीनिवास के अलावा साबिक कॉर्पोरेटर AR जाकिर, पुलिकेशी नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर चलपति तिरपाल के अलावा तमाम सीनियर कांग्रेस लीडर भी मौजूद हैं। ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ರೋಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ BBMP ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ FIR ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಫೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷನೂ ಅಷ್ಟೇ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಹೋಟ್ಲ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಟ್ಪಾತ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಜನ ರೋಡ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನಾವು ಫುಡ್ ಮೇಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಮೇಳ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನೋಡೋರಿಗೆ ಫುಡ್ ಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷನೂ ಅದೇ ಥರ ಆದರೆ ನಾವು BBMP ಅವರು ಈ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ನಾವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ FIR ಮಾಡಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬರ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ತಾವು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ BBMP ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ, ಯಾರೇ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತಪ್ಪಿಸೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಮೇಲಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹಿತ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಅದೊಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹಂಚ್ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹಂಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು, ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೂ ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿಗೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಂಚಿ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ FIR ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಏನಲ್ವಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್? ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರು, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ, ಲೈಟು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 18ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ಗೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಚರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಅಥವಾ ನೀರು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಜನಗಳಿಗೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಫುಡ್ಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. सबसे पहले मैं आलम इस्लाम को रमज़ान की खुदूस मुबारकबाद देना चाहूँगा। रमज़ान का महीना एक इबादत का महीना है, जहाँ पे कुरान नाजिल हुआ और रोज़े रखते हैं हम लोग और इबादत करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हुए आज जो मीटिंग रही MLA ऑफिस में, डिटेल्ड मीटिंग रही,
मैं एमएलए साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि फूड मेला जो एक बहुत बड़ा इशू बन गया था फैजल टाउन में, तो वो फूड मेले को कैंसिल करने में बहुत बड़ा अहम रोल रहा एमएलए साहब का, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस रहता था। जो महीना फास्टिंग का महीना छोड़कर फीस्टिंग का महीना बन चुका था, तो फैजल टाउन में इस बार भी फूड मेला नहीं रहेगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस एमएलए साहब ऑफिशियल्स को दिए हैं कि कोई भी स्टॉल्स नहीं लगेंगे यहाँ पे। जो भी छोटे मोटे व्यापारी करते, फ्रूट वेंडर्स 1-2 घंटे के लिए करते, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इवन होटलियर्स को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपने दायरे से छोड़कर बाहर नहीं आए, और BWSSB ऑफिशियल्स को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पानी की किल्लत नहीं रहेगी रमजान में। ओके, जितना नॉर्मल पानी पहुंचता था लोगों को, उससे ज्यादा पानी पहुंचना चाहिए। क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पावर कट्स नहीं होना है इस महीने में। तो मैं एमएलए साहब को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पुलकेश नगर के लिए कि फूड मेला कैंसिल हुआ। तो इस बार भी फूड मेला नहीं रहेगा। एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी एमएलए साहब से पहुंच गया है। Apart from this, any issues pertaining to any department, he is instructed the officials to follow it up strictly, and कुछ भी इशू रहा, even leaders, हमारे जितने भी लीडरान हैं वो भी इन्वॉल्व रहेंगे। रमजान स्मूथली इंशाल्लाह होगा। और लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो ट्रैफिक को मेंटेन करें। 5 वक्त की नमाज के वक्त मस्जिदों के पास गाड़ियां जहां खड़ती हैं वहां पे थोड़ा ट्रैफिक मेंटेन करें। और मैं और एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे मस्जिद हैं, इदारे हैं, मस्जिद के जिम्मेदार हैं, अपने अपने वॉलंटियर्स को रखें आप मस्जिदों के पास, और थोड़ा मेंटेन करें, ट्रैफिक को मेंटेन करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। एमएलए साहब ने स्पीच के दौरान कहा कि अगर कोई फूड मेला लगाना चाहे तो जीबीए को जाकर कर सकते हैं। मैं उनके खिलाफ हूं। जी, देखिए, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, फूड मेले के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन जो रमजान का महीना जो इबादत का महीना है, ओके, फास्टिंग का महीना है, रोजे का महीना है, उसको आप फीस्टिंग बनाने की कोशिश नहीं करें। ओके, और एक मैसेज क्लियर मैं देना चाहूँगा, जहाँ पे रमजान का महीना है वहाँ नौजवानों की जो तादाद होटलों के पास रहती है, मैं उनको भी एक आजिज़ाना गुजारिश करूँगा कि आप मस्जिदों में गुजारें। ओके, होटलों पे ना रहे, चाय पीने में और दूसरे एक्टिविटीज में टाइम ज़ाया ना करें। इबादत का महीना है, इबादत में लगे रहें, बहुत बड़ा अजर मिलेगा आपको। शुक्रिया सर। स्पेशली में देखें तो जो मौजूदा होटल है वो रोड तक आ जाता है सर, इनके लिए कोई एक्शन सिर्फ बात नहीं होता है सर, एक्शन तक नहीं। लास्ट ईयर भी पुलिस ने FIR रजिस्टर किया, जितने भी होटलियर्स हैं उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की। और इस बार भी एमएलए साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि होटलियर्स को अपने दायरे से छोड़कर बाहर नहीं आने देंगे। एंड हेल्थ ऑफिशियल्स ऑल्सो इन्फॉर्म दैट अगर कोई वो करता है, आप वीडियो भेजें उनका लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए। वी विल रिकमेंड फर्दर कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। वी विल नॉट अलाउ इवन होटलियर्स टू कम ऑन टू द रोड।